Hello and welcome. My name is Dheeraj Kumar Gupta. Today we discuss the classful internet address. So in this classful internet address, first of all we discuss the types of address. So there are two types of addresses. So addresses are in the two types. First one is the first one is physical address and another one is logical address. So this physical address is of the physical address is known as the MAC address. So MAC address is of 48-bit hexadecimal. So 48-bit hexadecimal number is the physical address. So MAC means media access controller, and it has the 6 segment. It is divided into the 6 segment. For example, this is the FC3E11, 3F, 51 and FF. So this 6 segment is separated with the colon. So MAC means the media access controller. It has the 48-bit hexadecimal number, and this is the example of the MAC address. It is also known as the hardware address. So MAC address is unique throughout the world. I had already explained in the previous video why this MAC address is unique throughout the world. You are comparing the LAN card of any LAN card in the world, so that are unique in nature. So this is the MAC address. Then the logical address. So the logical address is known as the IP address. So this logical address is the IP address, and this IP address is of two types. So IP means the internet protocol, and it is of two types. First one is IPv4 and second one is IPv6. So the first one, that is IPv4, it is of 32-bit, and IPv6 it is of 128-bit. It has 2 to the power 128. 2 to the power 128 means it has so many numbers which has used in the IP addresses. So this is the 2 to the power 128 means it has the large number of addresses, and that address is we need nowadays. The IPv4 is the 32 bits, and it has the less number of address, means it has the number of addresses, but it is not sufficient nowadays, because nowadays every device has an IP addresses. Every device has their IP addresses, and that IP address is not sufficient in the form of the IPv4. IPv4 is the base IP addresses, means the base is the IPv4, but nowadays we are using the IPv6, and that is in 128-bit. Means 128-bit means 2 to the power 128. So large amount of address is generated in IPv6. So we discuss this IP address, that is the base IP address is the 32 bits, and it is the two types. That is, the first one is the public IP address, and another one is the private IP address. So in this way we discuss the addresses
So address is of two types, that is the physical and logical. Physical address is the MAC address, which is 48-bit hexadecimal number, and the logical address is the IP address, that is the Internet Protocol address, and it is also two types, that is IPv4 and IPv6. Nowadays we are using IPv4, that is the base address, and it is of 32-bit. So in this IP address we divide this IP address into the two parts, that the first one is the public IP address and another one is the private IP address. So now we discuss this, how this IP address is divided into the classes. As we know, IPv4 is of 32 bits. 32 bit means we are using the binary number, so it means that 2 to the power 32, and it is the 2 to the power 32. Its value comes that 4294967,296. So this is the value of the 2 to the power 32. See, 2 to the power 32, it is the value of this 2 to the power 32, means it is the 4294967,296. So this much of the address is available when we are dealing with the IPv4. So we consider as that this much of address is used in IP classful and classless IP address. So classless IP address में इतने जो नंबर ऑफ IP एड्रेसेस है वो अवेलेबल है. सो उन्होंने क्या किया, अब इसको अगर उन्होंने को क्लास फुल में कन्वर्ट करना था और उन्होंने क्लास फुल में कन्वर्ट किया, और जो IP एड्रेसेस है उसके 5 टाइप्स बताए. जो IP एड्रेसेस उन्होंने इसके 5 टाइप्स क्रिएट किए, and the 5 types means the class A, class B, class C, class D, class E. So ये जो 2 to the power 32 है, ये 2 to the power 32 को इन्होंने इस तरीके से 5 क्लासेस में डिवाइड किए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई. अब इसको इन्होंने कैसे डिवाइड किया ये हम लोग देख लेते हैं. ये जो 2 to the power 32 है, इसकी वैल्यू ये जो आपके सामने यहाँ दिख रही है, इतनी वैल्यू है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे कंप्लीट वैल्यू कंसिडर के इन्होंने इसे इस तरीके से, ये जो है एक कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे असाइन की इस तरीके से. ठीक है, सो ये हो गया कंप्लीट 2 to the power 32. इन्होंने फिर क्या किया, इसका जो हाफ था, इसका जो हाफ सर्कल है, ये जो सर्कल हमने बनाया इट इज़ दी 2 to the power 32. सो इसका जो ये हाफ सर्कल है इसको इन्होंने नाम दिया क्लास ए, और इसमें का जो हाफ पोर्शन था इसको क्लास ए नाम दिया, और ये जो इसकी वैल्यू हुई इट इज़ दी 2 to the power 31. सो ये डिवाइड कर दिया उन्होंने क्लास ए में. उसके बाद ये जो हाफ पोर्शन बचा हुआ है इसको इन्होंने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये जो पोर्शन था इसको नाम दिया क्लास बी, और ये हो जाएगा 2 to the power 30. इस तरीके से इन्होंने क्लास ए, उसके बाद में क्लास बी, फिर ये जो हाफ, ये 1/4 पोर्शन जो बचा हुआ है इसको इन्होंने फिर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, और इसे नाम दिया क्लास सी, और ये होगा आपका 2 to the power 29. और ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और एक को नाम दिया क्लास डी, और एक को नाम दिया क्लास ई. इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया, और इस तरीके से जो क्लासेस के फॉर्मेशन है, ये जो क्लास फॉर्म हुआ वो इस तरीके से क्लास फॉर्म हुआ. सो ये क्लास ए, उसके बाद ये हाफ पोर्शन दैट इज़ द क्लास बी,
इसी के बाद फिर ये पोर्शन को डिवाइड किया, क्लास सी नाम दिया, डी और ई। इस तरीके से ये जो 5 क्लासेस है, ये 5 क्लासेस को इन्होंने इस तरीके से बनाए। अब ये जो क्लासेस हमारी इस तरीके से इन्होंने क्लासेस तैयार कर दिया। अब इसके बाद इसकी जो रेंज है वो किस तरीके से फाइंड आउट किए वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि रेंज क्लासेस की जो फाइंड आउट की गई है डिपेंड ऑन दिस 2 to the power 32। ये जो हमारे पास में एड्रेसेस है उसी के बेस पे इनके क्लासेस डिवाइड किए गए हैं और हर एक क्लास की एक पर्टिकुलर रेंज दी हुई है। वो रेंज हम लोग अब डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस द रेंज ऑफ क्लासेस। सो ये रेंज कैसे, जो हमने 5 क्लासेस बनाई उनकी रेंज कैसे डिराइव की वो हम लोग अभी देखते हैं। सो यहाँ पे वी डिवाइड 32 बीट इनटू डेसिमल नोटेशन। ये 32 बीट को हम लोगों ने 4 डेसिमल नोटेशन में इसे डिवाइड करते हैं। तो 4 डेसिमल नोटेशन में अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा A.A.A.8। इस तरीके से ये 4 डेसिमल नोटेशन में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। सो जब भी हमें क्लासेस फाइंड आउट करने होते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ये जो 32 बीट का फर्स्ट ऑक्टेट है, ये हमको लेना है। जैसे कि 8.8.8.8 करने पे इसकी वैल्यू आती है 32 बीट। मतलब हम लोग यहाँ पे एक ऑक्टेट के साथ में डिस्कस करते हैं और ये जो 32 बीट का जो एड्रेस है इसे हम लोग 4 डेसिमल नोटेशन में इसको डिवाइड करते हैं। तो ये डेसिमल नोटेशन में हमने इसे डिवाइड किया और ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसके थ्रू हम लोग जो ये क्लासेस की जो रेंज है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये सबसे पहला जो हमारा ऑक्टेट है ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑक्टेट इज 0000000। इसकी वैल्यू होंगी दैट इज 0 और उसके बाद जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 11111111 एंड इट इज 255। तो जो हमारे क्लासेस की रेंज होंगी वो भी 0 से लेके 255 के बीच में ही होंगी। इससे ना तो ज़्यादा होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 255 से ऊपर नहीं जा सकती। तो जो इसकी हमारी जो क्लासेस की रेंज होंगी वो 0 से 255 इसके बीच में होंगी। सो अब हम लोग देखते हैं कि ये इसकी रेंज की फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक। उससे पहले हम लोग जो डेसिमल नोटेशन का जो कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारा बाइनरी का जो बेस होता है दैट इज़ 2 होता है और इसकी जो पावर है अगर उसके पावर में मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 एंड 2 to the power 7। अगर इसकी मैं वैल्यू रखता हूँ और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो 2 to the power 0 एनी नंबर 0 इज दी 1, इसकी वैल्यू होंगी 2, इसकी वैल्यू होंगी 4, इसकी वैल्यू होंगी 8, इसकी वैल्यू होंगी दैट इज 16, इसकी वैल्यू होंगी 32, इसकी वैल्यू होंगी 64 और इसकी वैल्यू होंगी दैट इज 128। अगर ये सभी को प्लस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होंगी 255 होंगी। इसलिए जब हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इसी के बेस पे हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं। सो देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ए के लिए। सो क्लास ए, अब जब भी आप क्लास ए की बात करते हो तो क्लास ए में हम सबसे पहले जो हमारा ऑक्टेट है, मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि हम लोग उस ऑक्टेट के साथ में डील करेंगे। जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है उसी के साथ हमें डील करना है। ये जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट दिख रहा है ये ऑक्टेट के साथ में हमें इसे क्या करना है, डील करना है। सो जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सब फर्स्ट ऑक्टेट में मेरे जो वैल्यू है इसे मुझे क्या करना है, जब भी आपको क्लास ए की रेंज फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट 0 है उसको रिजर्व करते हैं। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट बीट है दैट इज़ 0, इसको रिजर्व कर लेंगे और बाकी के बीट्स को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे 4
इस तरीके से, और इसकी जो वैल्यू होंगी ये होंगी 0। उसके बाद यहाँ पे भी जो फर्स्ट ऑक्टेट आएगा लास्ट में जो 1111 आता है सभी में, इसको भी मैं 0 को रिजर्व कर लूँगा, और बाकी के जितने भी है सबको 1 एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1111, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो क्लास ए में हमने क्या किया कि जो पहला यहाँ पे वो था हमारा, दैट इज़ जो पहला 0 है इसको हमने रिजर्व कर लिया और बाकी सबको एज इट इज़ लिखा। तो इसकी जब भी आप प्लस करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जब इसको प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है दैट इज़ 127। सो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 127 आई, देयरफॉर क्या होगा, द रेंज ऑफ क्लास ए इज 0 to 127। ये मेरी रेंज निकल गई क्लास ए के लिए। लेकिन यहाँ पे जो 0 और 127 होता है ये रिजर्व होता है। ये 0 और 127 हम लोग इसको रिजर्व करते हैं लूप बैक एड्रेसिंग के लिए या सेल्फ चेकिंग के लिए ये यूज़ होता है। सो लूप बैक एड्रेसिंग या सेल्फ चेकिंग के लिए 0 और 127 यूज़ होता है। सो द न्यू रेंज ऑफ क्लास ए इज 1 to 126। सो यहाँ पे जो नई रेंज है क्लास ए की वो आई 1 to 126। मतलब ये जो 0 और 127 है ये रिजर्व है, तो जो नई क्लास की जो रेंज आएंगी वो क्लास ए की वो होंगी 1 to 126। इसी टाइप से जब हम लोग क्लास बी की बात करते हैं, सो क्लास बी में हम लोग यहाँ पे एक बीट को हमने यहाँ पे रिजर्व किया था, अब यहाँ पे हम लोग 2 बीट को रिजर्व करेंगे, और उसको रिजर्व हम इस टाइप से करेंगे 1 0। ये 2 बीट को हमने यहाँ पे रिजर्व कर लिया, और जो बाकी की बीट्स है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, दैट इज़ 0 0 0 0। और यहाँ पे भी जो 1 वाली जो वहाँ है यहाँ पे भी हम लोग 1 0 ये 2 बीट को रिजर्व कर लेंगे क्लास बी के लिए, और बाकी के जो है वो सब इस तरीके से 1 1 1 1 हम लोग यहाँ लिख देंगे। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 128, और इसकी जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 0 है बाकी सब 1 1 है, जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 191। सो जब इसकी वैल्यू 191 आई, सो देयरफॉर द रेंज ऑफ क्लास बी इज 128 to 191। सो इस तरीके से हमने जो क्लास बी है उसकी रेंज फाइंड आउट की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास सी की रेंज फाइंड आउट करने के लिए। सो क्लास सी की रेंज क्या होंगी, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लास सी इंडिकेट करते हैं, और इस क्लास सी में हम लोग 3 बीट को रिजर्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 किया था, यहाँ पे 1 किया है, सो यहाँ पे हम लोग 3 बीट को रिजर्व करेंगे। सो क्लास सी के लिए 3 बीट को हमको रिजर्व करना है। सो फर्स्ट 1 1 0, इस तरीके से ये जो 3 बीट्स है इसको हम लोग यहाँ पे रिजर्व कर लेते हैं, और बचा हुआ जो बीट है उसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे 0 0 0 0 0, और यहाँ पे भी हम लोग 3 बीट को रिजर्व कर लेंगे 0 इस तरीके से, और बची हुई पूरी बीट्स एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। सो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 128 + 64 दैट इज़ 192, और जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ यहाँ पे 0 और बाकी सबको ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यू होंगी द वैल्यू इज़ 223। सो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 223 आती है, सो इसका मतलब देयरफॉर द रेंज ऑफ क्लास सी इज 192 to 223। इस तरीके से हमने क्लास सी इसकी रेंज फाइंड आउट की। सो यहाँ पे हमने देखा कि जब क्लास ए की बात थी तो वहाँ पे हमने 1 बीट को रिजर्व किया था, यहाँ पे 2 बीट को रिजर्व किया,
और यहाँ पे क्लास सी में हमने 3 बिट को रिजर्व किया। वैसे ही हम लोग क्लास डी और ई इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट करते हैं। क्लास डी की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि क्लास सी में हमने 3 बिट को रिजर्व किया था, वैसे ही हम लोग क्लास डी में 4 बिट को रिजर्व करेंगे। और वो बिट किस टाइप से रिजर्व करेंगे, 1 2 3 और 4th वाला 0 होगा। इस तरीके से ये 4 बिट को हमने यहाँ रिजर्व किया। इसके बाद बाकी की बिट्स एज इट इज लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। एंड यहाँ पे 1 के लिए भी ये 4 बिट को हम लोग रिजर्व करेंगे और जो बाकी की बिट्स है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। द वैल्यू ऑफ दिस इज that is 128 plus 64 plus 32, that is 224, and this is the 0 and this 1, इसको सभी को प्लस करने के बाद इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट होती है that is 239. So therefore the range of class D is 224 to 239. इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया द रेंज ऑफ क्लास डी। अब इसके बाद में जो लास्ट क्लास है दैट इज क्लास ई, उसके लिए हम लोग 5 बिट को रिजर्व करेंगे। तो क्लास ई, एंड इन दिस क्लास ई हम लोग 5 बिट को रिजर्व करेंगे, 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5 और बाकी के यहाँ पे 0। और यहाँ पे जो लास्ट बिट है दैट इज दी, यहाँ पे जो क्लास ई है उसके लिए जो हम लोग यहाँ पे 5 बिट को रिजर्व कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग सभी को 1 1 कर देंगे। द रेंज ऑफ क्लास ई, इसको अगर हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 240, और इसको अगर 1 1 को हम लोग यहाँ प्लस करते तो इसकी वैल्यू आती है 255। therefore the range of class E is 240 to 255। इस तरीके से हमने सभी क्लासेस के रेंज फाइंड आउट कर लिए। हमने क्या किया, सभी क्लासेस के रेंज फाइंड आउट किए। अब यहाँ पे उसे हम लोग लिख लेते हैं कि जो रेंज है सभी क्लासेस के वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज द रेंज ऑफ क्लास ए दैट इज 0 to 127, but we know that this 0 and 127 is reserved for loopback addressing or self-checking. So the new range of class A is 1 to 126. ये क्लास A की रेंज हो गई। क्लास B 128 to 191, क्लास C 192 to 223, क्लास D 224 to 239 एंड क्लास E is 240 to 255। 255 से ऊपर एड्रेसेस नहीं जाते। यहाँ पे हमने ये पूरे के पूरे क्लासेस और उसकी रेंज यहाँ पे लिख ली। क्लास A that has the range 0 to 127, but 0 and 127 is reserved for self-checking or loopback addressing. Therefore the new range is 1 to 126। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो क्लास A है इसमें 0 और 127 ये रिजर्व होता है फॉर सेल्फ चेकिंग और लूप बैक एड्रेसिंग के लिए। द रेंज ऑफ क्लास A is 1 to 126, क्लास B is 128 to 191, क्लास C is 192 to 223 and class D is 224 to 239 and class E is 240 to 255। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो पहले के ये A B C ये जो 3 क्लासेस है इनको हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब वी आर यूजिंग, और इसी को हम लोग प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। आप कोई भी एड्रेस चेक करोगे तो आप किसी भी डिवाइस का एड्रेस चेक करोगे तो वो इसी में से होगा, मतलब A B या C में से होगा।
उसके बाद जो क्लास डी होता है ये होता है यूज फॉर द मल्टीकास्टिंग। ये यूज करते हैं हम लोग क्लास डी को मल्टीकास्टिंग के लिए। एंड क्लास ई इज रिजर्व फॉर द रिसर्च पर्पस के लिए ये रिजर्व है। सो दिस इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस, जिसमें हम लोगों ने 5 क्लासेस में इसको डिवाइड किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड ई, जिसमें से 3 हम लोग यूज करते हैं और ये 2 क्लासेस है ये यूज होता है। एक क्लास यूज होता है मल्टीकास्ट के लिए और दूसरा रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व करके रखा हुआ। नाउ वी डिस्कस दी नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। Now we discuss the network ID and host ID. So we know that the 32-bit IP address we are denoted into the 4 decimal notation. So we actually denoted this 32-bit into the 4 decimal notation. So here we consider that this 4 decimal notation we have considered that a dot b dot c dot d। इस तरीके से हमने इसको, दिस इज द a मीन्स 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ये सभी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास में 32 बिट होता है। सो इसको अगर मैं इस तरीके से 8 बिट को इस नेम से इंडिकेट कर लेता हूँ, दैट इज द a b c d, तो ये जो है मेरे पास में यहाँ पे ये टोटल 4 ऑक्टेट जो है ये यहाँ पे क्रिएट होंगे और दिस 4 ऑक्टेट मीन्स 8 + 8 + 8 + 8 इट इज़ दी 32 बिट। इस तरीके से ये 32 बिट होगा। सो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले दैट इज़ दी क्लास ए के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो क्लास ए में हम लोग जो अभी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी डिस्कस कर रहे हैं, सो क्लास ए में क्या होगा, अगर इसे 4 नोटेशन से मैं इसको डिनोटेड करता हूँ a डॉट p डॉट c डॉट d। सो क्लास ए के लिए ये जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है ये होता है मेरा नेटवर्क आईडी। ये जो मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है ये है मेरा नेटवर्क आईडी और रिमेनिंग 3 आर दी माय होस्ट आईडी। ये मेरे क्या है, होस्ट आईडी है। सो जो क्लास ए है इसमें जो मेरा फर्स्ट ऑक्टेट होता है दैट इज दी नेटवर्क आईडी एंड रिमेनिंग 3 आर दी होस्ट आईडी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो क्लास ए है इसके लिए हमने जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है उसको हमने नेट आईडी की नेटवर्क आईडी या नेट आईडी से रिप्लेस किया और जो रिमेनिंग 3 थे उसको हम लोगों ने होस्ट आईडी से रिप्लेस किया। उसके बाद जो क्लास बी है, सो क्लास बी जो है यहाँ पे भी मैं इसको रिप्लेस करता हूँ इस तरीके से 4 ऑक्टेट में, दैट इज a डॉट b डॉट c डॉट d। सो जो क्लास बी होता है उसमें जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट होता है, जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट है दिस इज माय नेट आईडी एंड रिमेनिंग 2 आर दी माय होस्ट आईडी। सो ये हो गया मेरा क्लास बी के लिए। सो क्लास बी में द फर्स्ट 2 ऑक्टेट इज माय नेट आईडी एंड रिमेनिंग 2 आर माय होस्ट आईडी। वैसे ही अगर आपको क्लास सी के बारे में निकालना है, सो क्लास सी, इन क्लास सी मैं इसको फिर से डोनेट करूंगा a डॉट b डॉट c डॉट d। सो इन अ क्लास सी माय फर्स्ट 3 ऑक्टेट is net id and remaining 1 is my host id। इस तरीके से हम इसको रिप्लेस करते हैं। सो यहाँ पे देखा हमने कि क्लास ए में हमने क्या किया, जो फर्स्ट ऑक्टेट था वो मेरा नेट आईडी था, रिमेनिंग जो 3 ऑक्टेट थे दैट इज माय होस्ट आईडी। क्लास बी में द फर्स्ट 2 इज माय नेट आईडी एंड रिमेनिंग 2 आर माय द होस्ट आईडी। वैसे क्लास सी में द फर्स्ट 3 इज माय नेट आईडी एंड रिमेनिंग 1 इज द होस्ट आईडी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसमें नेट आईडी और होस्ट आईडी फॉर्म करते हैं। तो जो हमारे 3 क्लासेस है दैट इज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसमें
नेट आईडी और होस्ट आईडी इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबनेट मास्क की। सो जनरली कई बार ऐसा होता है कि सबनेट मास्क हमें पूछा जाता है, तो सबनेट मास्क होता क्या है एक्चुअली। सबनेट मास्क में हम लोग करते क्या है कि ये जो नेट आईडी है इसको रिप्लेस करते हैं 255 से, और होस्ट आईडी है इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग 0 से। सो देयरफॉर द क्लास ए सबनेट मास्क क्या होगा क्लास ए का, कि जो नेट आईडी है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे 255 से। तो क्लास ए सबनेट मास्क इज 255.0.0.0। तो ये हो गया क्लास ए के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट नेटवर्क होता है वो मेरा होता है नेट आईडी, जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो मेरा नेट आईडी होता है, रिमेनिंग 3 ऑक्टेट इज माय होस्ट आईडी। सो दिस इज द सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0। वैसे ही इसी को हम लोग नेटवर्क आईडी भी बोलते हैं। अगर नेटवर्क आईडी कोई क्लास ए का बोलता है तो भी आप इसको बोल सकते हो कि 255.0.0.0 इज द नेटवर्क आईडी। वैसे क्लास बी, सो देयर द क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होगा, नेट आईडी को रिप्लेस करते हैं हम लोग 255 से, 255.255. और होस्ट आईडी को 0 से 0.0। सो क्लास बी का जो सबनेट मास्क होगा दैट इज 255.255.0.0 ये होगा। और इसी को हम लोग नेटवर्क आईडी भी, नेटवर्क एड्रेस भी बोलते हैं। नेटवर्क एड्रेस भी हमें इसी को बोलते हैं। उसके बाद क्लास सी है। सो क्लास सी के लिए क्या है, क्लास सी दैट इज 255.255.255.0। इस तरीके से हमने ये जो क्लास सी है इसका जो सबनेट मास्क है वो होता है 255.255.255.0, और इसी को हम लोग नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। सो जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी क्लास के साथ में डील करते हैं, तो जब भी आपको क्लासेस के बारे में अगर कोई कुछ पूछता है तो क्लासेस हम कैसे पहचानते हैं। क्लासेस के लिए मैंने अभी आपको बताया कि क्लासेस के लिए आपको सिर्फ ये फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। ये फर्स्ट ऑक्टेट देखने के बाद में उसके जिस रेंज में वो आ जाएगा, जिस रेंज में होगा वो, उसका वो आईपी एड्रेस उस क्लास का है, तो उसको हम लोग क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे देखा ये जाता है कि अगर आपको सबसे ज़्यादा होस्ट अगर किसी क्लास में मिलते हैं तो वो मिलते हैं आपको क्लास ए में। क्लास ए में मुझे मिलते हैं जो होस्ट मिलते हैं दैट इज़ 2^24 इतने होस्ट मुझे मिलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा नेटवर्क है वो मुझे मिलता है आप अपना इस क्लास सी में। क्लास सी में जो सबसे ज़्यादा नेटवर्क होता है दैट इज़ 2^24 इतने नेटवर्क मुझे यहाँ मिलते हैं। तो जहाँ पे आपको नेटवर्क की ज़रूरत है, ज़्यादा नेटवर्क की ज़रूरत है, वहाँ आप क्लास सी का आईपी एड्रेस दे सकते हैं, और जहाँ कम नेटवर्क की ज़रूरत है वहाँ क्लास ए का दे सकते हैं। वैसे ही जो सबसे कम होस्ट होता है वो क्लास ए सी में होता है। सो आपको क्लास सी में 2^8 इतने होस्ट मिलेंगे दैट इज़ दी 255 इतने होस्ट आपको क्लास सी में मिलते हैं। तो जहाँ पे छोटा नेटवर्क की बात आती है वहाँ पे आप क्लास सी का आईपी एड्रेस देके वहाँ पे एड्रेसेस आप दे सकते हो। और जहाँ पे ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कम होस्ट की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे क्लास सी का आईपी एड्रेस देता हूँ। और जहाँ पे आपको जहाँ पे ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे आप इसे क्लास जो यहाँ पे हमारा ए है उस क्लास ए का या क्लास बी का आप आईपी एड्रेस दे सकते हो। सो इस तरीके से हम लोगों ने आज डिस्कस किया दैट इज़ दी क्लास फुल इंटरनेट एड्रेसेस। एड्रेस जैसे कि 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो क्लासेस है वो किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, कैसे क्लासेस बने, उनको किस तरीके से बनाया गया। उसके बाद उसके रेंज क्या होते हैं, रेंज के बाद में वो जो क्लासेस है जिसके हम लोग रेंज बनाने के बाद जो क्लासेस होते हैं वो उसकी जो रेंज है उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, किस रेंज का आईपी एड्रेस है, कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, वो हम लोग फर्स्ट ऑक्टेट देखते हुए उससे पहचानते हैं कि वो कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। उसके बाद हम लोगों ने आज देखा नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होता है, और किस क्लास का नेटवर्क आईडी को क्या होता है और किस क्लास का होस्ट आईडी क्या होता है। इस तरीके से हमने उसको फाइंड आउट किया। उसके बाद में हम लोगों ने सबनेट मास्क की बात की। यहाँ पे सबनेट मास्क क्या होता है, कैसे हम लोग सबनेट मास्क फाइंड आउट करते हैं,
या नेटवर्क एड्रेस क्या होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं नेटवर्क में, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करता है नेटवर्क, वो सब हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, उसका मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। सो ओके, बाय बाय।